السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مکہ میں ایک مرتبہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، کھیت کھلیان سب سوکھنے لگے تھے، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کچھ کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لیتے اور اسے کسی جانور کے خون سے بھر دیا کرتے تھے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش ہونا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اسے جانور کے خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے، مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک بارش نہیں ہوتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا، آج رات آدھی رات کو سب کعبہ کے پاس پہنچنا اور کعبہ کی دیوار پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہو گیا، مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں ان میں اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے، اور جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارے مکہ میں سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسمیں کھائی ہیں کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رہیں گے، بس اسی کام کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اپنے چچا ابو طالب کا جواب سن کر اللہ کے پیارے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس چلا آؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے تھے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے تھے۔
जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डालकर कस्में खाई थीं। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने बारिश बरसाने की कस्में खाई हैं और वो उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक कि बारिश न हो जाए, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ चल पड़े, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया। वो 32 लोग जिन्होंने कस्में खाई थीं, वो काबा के बिल्कुल पास खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चों को अपने साथ खड़े हुए देखा तो वे सारे लोग अबू तालिब को आंखें निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने अपना हाथ खून में डुबोकर कस्में खाई हैं, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं है। और यह सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं बरसा। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग ऐसे ही पानी मांगते रहे और कहते रहे, काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर बारिश नहीं हुई। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी, दिन तपने लगा था। काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थीं, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक आसार नहीं नज़र आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने से तर हो चुके थे। उनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे थे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजे मोहम्मद खड़ा है। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि ए चचा, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 के 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तुम 9 साल के हो और तुम ऊपर वाले से पानी मांगोगे और वो पानी बरसा देगा? जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर बैठ गए और उसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए मगर पानी नहीं बरसा और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने पकड़ा और अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा, फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चचा, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया। झट से भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूँगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। ये सुनकर मक्का के लोग कहने लगे कि ए पागल, पानी कहाँ आया, हम सब गर्मी से मरे जा रहे हैं, तू बोलता है कि पानी आ गया। तो वो एक शख्स कहने लगा, मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा तो पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद जल्दी आ जाओ, ए मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास आ गए और सब से कहने लगे कि तुम लोग क्या कर रहे थे? तो सब ने कहा कि हम सब यहाँ पानी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तो लोगों ने कहा, आप हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। और वो 12 लोग पीछे नहीं गए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ, और अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे तो सब लोग पहले ही थक हार गए थे, इसलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा कि पीछे आ जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल की है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग भी पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर कहने लगे कि ऐ लोगों, तुमने पानी मांगा था और इसलिए चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, तो फिर तुम्हारे में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बस यही तो तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि बादल लगना शुरू हो गया है। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। इसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो मक्का में हर तरफ ज़ोरदार बारिश होने लग गई, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई?
آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی کے بچپن کی کراماتیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم۔